missing. Last question, ma'am, it was some part of the question was missing. And ma'am, in some अच्छा, questions, एरर आ रहा था पेपर में. yes, You mean to say? yes, ma'am. There Yes, were ma'am. errors. Sure. That was the main trouble you faced yesterday. Yes, ma'am. It And we happened also only received several questions. with chemistry कि बाकी subjects में भी No, हुआ? ma'am, all the sections. Ma'am, in all subjects. All subjects. फिर कुछ problem हुआ होगा आप में? Okay, okay. Fine, fine, fine. Okay. So any question you want me to discuss from the test? Anything you want me to discuss या फिर हम लोग आगे proceed करें? Ma'am, there was one question, ma'am, 500 ml of बेटा glucose ऐसे नहीं solution. पूरा question read करके बताओ. Ma'am, I was reading the question only, Okay, ma'am. okay. 500 I ml thought of you glucose. हाँ, Ma'am, 500. was glucose, ma'am. It's ma'am. I was little bit confused in the answer, ma'am. The Okay, question was fine. 500 ml of glucose solution contains 6.02 into 10 to the power 22 molecules, and the concentration of the solution is. Ma'am, we have to find molarity. Ma'am, here my answer was coming out to be 2 moles. Why 2 moles? Molecules इतने हैं ना? 1 mole of solution is given. Why not 1 mole? 0.1 ना? इतना molecules तुमने बोला ना मुझे? Yes, ma'am. Ma'am, I thought it to be 1 mole. Ma'am, I took अरे it 6 10 to to the the power हाँ, तो 23. यही तो छोटी छोटी मिस्टेक होती है. मैंने तुम्हें बोला था कि पेपर करने से पहले easiest, फिर उसके बाद में क्रॉस चेक करना है कि हम छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें. तुम Ma'am, I कितने took लोगों it ने to be 10 to the power 23. हाँ हो जाता है ये. एक्चुअली दैट्स व्हाट इज द मिसकंसेप्शन अबाउट आईआईटी जेईई कि पेपर डिफिकल्ट आता है. पेपर बहुत इजी आता है. प्रॉब्लम वैसे छोटी छोटी चीजें होती है जो तुम लोग स्कूल लेवल पे या बोर्ड लेवल पे बहुत कैजुअल वे में लेते हो. मतलब ये कह सकते हो कि योर ब्रेन इज नॉट ट्रेन्ड टू लुक इनटू दिस स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स. ओके, बिकॉज इवन इफ यू वुड हैव डन दिस पार्ट इन स्कूल, तो तुम्हारी टीचर 4 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन होता तो तुम्हें आराम से 2 या 3 दे देते. बट दिस इज आईआईटी जेईई. 4 और 2 तो छोड़ ही दो, सीधे सीधे -1 होता है यहाँ तो. ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स भी है ना, वो हमें बड़ी सीरियसली लेनी है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज सिलेबस एंड एवरीथिंग इज सेम इन आईआईटी जेईई एंड बोर्ड्स. And there is one question. हाँ बोलो. Equal moles of H2O and NaCl are present in a solution, hence molarity of minute. the solution is इक्वल मोल्स बोला है, ठीक है. NaCl आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, इक्वल मोल्स. तो वो क्या निकालना है? molarity of NaCl solution. मोलारिटी या मोलालिटी? स्मॉल m और कैपिटल M? Ma'am, capital M. Molarity. मोलैरिटी. अब इक्वल मोल्स के लिए मैंने तुम्हें हमेशा बोला था कि मतलब तुम कुछ भी ले लो, बट मैं सपोजिंग मैं ले रही हूँ 1 मोल. तो अगर NaCl का 1 मोल लिया तो वाटर का भी कितना मोल होगा? 1 मोल. ठीक है. अब मोलारिटी के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है. और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो जब तक हमें स्पेसिफाइड ना हो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, जनरली हम लोग क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या ट्रीट करते हैं? Volume of solvent. Yes, we take volume of solute to be negligible and we treat it as volume of solvent. So basically what will be the, मतलब यहाँ पे दिया तो कुछ नहीं है, लेकिन वाटर के लिए ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाउ मच 1 gram. and what will be mass of water, क्योंकि वो 1 मोल लिया है तो it will be 18 grams. So what will be the volume of water, or you can say 18. approximately volume of the solution. कितना हो जाएगा बेटा? 18 ml. Okay. Now you can need to find the molarity. तो moles हमें पता ही है 1 है. Volume of the solution 18 ml आ रहा है, but because this is in ml, we'll solve it like this. Now can you solve it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. तो वाटर के केस में डेंसिटी दिया हो ऐसा जरूरी नहीं. Answer match. Answer was wrong in the. Yes, Ma'am, it should be 55.5, but Yes. yes, ma'am. Okay. Ma'am, it Might was be showing some 1 is error. correct. Okay. Might be some error. Then next thing, corrections है. Okay. Anything else? Ma'am, there was another question. Ma'am, थोड़ी सी values missing थे question से. हाँ, वो तो तुम बता रहे हो सबके साथ ही था, मतलब सब सब्जेक्ट्स के साथ हुआ है. तो वो तो हम लोग मतलब देखते हैं what is the app error. That tech team will look into it. Anything else? Ma'am, the No, 8 ma'am, question. nothing as such. The 8 Please one at a time. हाँ बोलो, कोई एक बोलो.
Ma'am, the 8th question. Ma'am, it says Please ma'am read it 100 out. gram, the 100 gram of ethylene polymers entirely polymerizes अरे entirely बेटा, polyethylene. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना है उसमें, सिंपल। Yes, ma'am. उसमें कुछ बड़ी चीज थोड़ी ना करनी थी, सिर्फ आईआईटी यही करता है बेटा, ऊटपटांग लैंग्वेज लिख करके तुम्हें कंफ्यूज करता है। अब 100 ग्राम्स अगर रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट भी कितना बनेगा, चाहे इथीन ले लो चाहे पॉलीथीन ले लो, प्रोडक्ट कितना बनेगा? कुछ 100 हमने grams of बाहर से तो डाला 100 नहीं grams. है, तो पॉलीथीन भी कितना बनेगा बेटा? मैम polymerization मैम गिवन था, मैम उसमें कुछ लॉस नहीं होता है मैम। नहीं बेटा, अगर लॉस होगा भी तो वो स्पेसिफाई करेंगे, बट दिस इज लाइक दिस इज एडिशन रिएक्शन, इतना तो मतलब लाइक एक्सपेक्टेड ही है कि तुम्हें पता होगा। और अगर लॉस होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर कुछ ऐसी टाइप की स्पेसिफिक रिएक्शन होगी तो वो तुमको स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हें अभी इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके तो अगर ऐसा कुछ लॉस या चीज हो रही होती तो हम लोग इसे स्पेसिफाई करते हैं। हम लोग बस इतना समझना चाह रहे थे कि तुम इसको अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है? गेट मम्मा एक कभी भी सेकंड, किसी क्यों क्वेश्चन, खींच रही है फोन? खींच रहा प्लीज है। कैन यू कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट? गेट बंद कर। नाव्या, प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। ओके फाइन। तो बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ अभी? Yes ma'am, yes ma'am. Yes. गिव अप करने से पहले क्वेश्चन को एक दो बारी उसको रीड किया करो, ठीक है? सोचा करो, मैंने तुमको बोला था ना, थिंक अबाउट, थिंक अबाउट इट कि हमने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, क्या किसी चीज से लग सकता है, और लग सकता है तो हम कैसे अप्लाई करें। ये थिंकिंग प्रोसेस तुम्हें खुद डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टेस्ट देने के बाद में तुम्हें खुद भी रियलाइज हुआ होगा कि कितना भी हम क्लास में करा दें, अगर हम एक ही चैप्टर को लेके बैठे रहे तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम मुझे डाउट्स भेजते हो, मैं बोलती हूँ स्किप करो अभी इस डाउट को, हम बाद में करेंगे। उसका रीजन क्या है? अगर मैंने उन डाउट्स को लेना स्टार्ट किया तो हम बस पता चलेगा पूरा साल भर एक ही चैप्टर करते रह जाएंगे और हम सिलेबस को कवर ही नहीं कर पाएंगे। तो मतलब वही चीज है कि यू नीड टू डू इट योरसेल्फ, ट्राई, क्योंकि एवरी टाइम दे आर गोइंग टू गिव यू अ न्यू क्वेश्चन, एवरी टाइम, ओके, न्यू थिंग्स। सो यू नीड टू डेवलप योर थिंकिंग प्रोसेस। वो कैसे आएगी? टेल मी, कैसे आएगी थिंकिंग प्रोसेस? Problem solving. Solving more questions. जितनी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा हेल्पफुल आएगी। अब जैसे मेरे पास कुछ बच्चे थे, उन्होंने बोला कि हम लोग आरसी मुखर्जी ले लेते। देखो ये एक बहुत अच्छी बुक हुआ करती थी जब हमारा पेपर, मतलब तुम्हारे काफी काफी सीनियर लोग तुम्हें ये रिकमेंड कर देंगे, जब हमारा पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था। क्योंकि इफ यू गो थ्रू दैट बुक यू विल सी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम सब्जेक्टिव पैटर्न, ठीक है? कहने की बात ये है कि अगर हम बोल सकते हैं कि हमें सेम बुक पढ़नी है, सेम सब, ठीक है, तो सब्जेक्टिव, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है जो ये समझते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में कोई डिफरेंस ही नहीं होता। उल्टा ऑब्जेक्टिव इजी होता है, सब मतलब लोगों के मन में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्यों? क्योंकि वहां होती है नेगेटिव मार्किंग, स्टेप मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। और देखो इस टाइप की सिली मिस्टेक्स ही लोगों को डूबती है। मतलब मैंने लोगों के सिली मिस्टेक्स की वजह से, किसी के अगर 280 आने थे ना, उसके सिली मिस्टेक्स की वजह से मैंने 220 तक जाते हुए भी देखे हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा। तो प्लीज तुम्हें मतलब एक अलग ही अपने माइंड को ट्रेन करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए और अपनी एफिशिएंसी को 100% मतलब बेस्ट देने के लिए। तुम्हें खुद भी दिखा होगा डिफरेंस, कितने लोगों ने सिली मिस्टेक्स करी? अच्छा बताओ, पेपर एनालाइज किया होगा, हाउ मेनी ऑफ यू डिड? ओनली 2, 4? आई नो मेनी नंबर्स विल बी देयर, ओके? तो तुम्हें अभी तक तुम लोग स्कूल का बोर्ड एग्जाम, जैसे एक तरीके से बोल सकते हो बोर्ड लेवल का टेस्ट देते थे, और अब तुमने एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया जिसमें आंसर तुम्हारे सामने थे। कौन सा तुम्हें कंपैरेटिवली ज्यादा ट्रिकी लग रहा है? Which one is you feel is the trickier one? This one ma'am, because it has Yes, ma'am. options ma'am. It has Objective one. Yes. Objective. Yes. And कितने लोगों ने फिर भी प्रेशर फील किया कि नहीं हमें 100% परफॉर्मेंस देनी है? किसी ने नहीं फील किया ना? Still some people felt no, you cannot expect, मतलब देखो अगर तुम कर पाते तो you are really very good if you are expecting कि तुम 100% करके आओगे, but अपनी को परफॉर्मेंस 100% का नहीं सोचना है, ठीक है? पहले कितने का टारगेट लेके जाना है?
जब हम एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मारेंगे तब हमारा टारगेट होगा 60, 65, 70% करना, मतलब इजी ढूंढते हैं, 70% कर पा रहे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर 70% के बियॉन्ड, फिर हमें जब टाइम बच जाएगा 2 घंटे के बाद में, जब हम लोग मतलब जो हमने किए हैं 70% बिल्कुल परफेक्ट हो गए, हमने उनको क्रॉस चेक कर लिया, सिली मिस्टेक्स वगैरह जितनी हो सकती हैं हमारी तरफ से कोशिश उतनी अवॉइड कर ली, तब लास्ट के 1 आवर में अपना परसेंटेज बढ़ा लो, ठीक है। अगर तुमसे 5 क्वेश्चन और होते हैं तो उसको 80% कर लो, 90% कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी रैंक इंप्रूव होगी। बट इनिशियली अपने आप को प्रेशराइज मत डालो, 60-70% के बीच में भी अगर तुम कर पा रहे हो, यू आर एट सेटिस्फैक्ट्री पोजिशन। इवन इफ यू आर ट्राइंग टू डू नरेंद्र अवस्थी और तुमसे 50% क्वेश्चन हो रहे हैं ना, तुम बहुत सही पोजिशन पे हो, ओके। एंड नाउ यू कैन योरसेल्फ रियलाइज मैंने नरेंद्र अवस्थी क्यों सजेस्ट की है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस तुमने देखे थे कैसे हैं। डिड यू सी द क्वेश्चंस? यस मैम। Yes, ma'am. ऑब्जेक्टिव है ना, और हमारा टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना, तो हमारी ब्रेन ट्रेनिंग यहाँ से हो जाएगी। और इसको करते टाइम ऐसे नहीं करना है कि तुमने क्वेश्चन नंबर 1 किया आंसर देखा, 2 किया आंसर देखा, नहीं। अगेन टेक इट इन द फॉर्म ऑफ अ टेस्ट ओनली। वो टेक अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस, 1 2 तुमने अब चैप्टर तो रिवाइज कर ही लिया है, तो अपने आप एक टारगेट बना लो कि मुझे रोज के 10 क्वेश्चंस करने हैं। देखो एक दिन करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा, तो यू नीड कंसिस्टेंसी इन योर स्टडी टू सक्सीड। ये कीवर्ड याद रखना, आज 10 घंटे पढ़ लिए और फिर 2 दिन कुछ नहीं पढ़ा, वो जीरो है। तुमको कंसिस्टेंट 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे, ठीक है। अगर तुम्हें एग्जामिनेशन सक्सीड करना है तो सिंसियर कंसिस्टेंसी चाहिए, 2 घंटे ही दो लेकिन सिंसियरली दो, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुम 2 घंटे पे रिस्ट्रिक्ट कर जाओ, मतलब ऐसे अपना टाइम टेबल ऐसे बनाओ कि बस जो भी तुम टाइम दे पाओ डेडिकेटेडली एवरी डे दे पाओ, ठीक है, डेडिकेटेडली एवरी डे दे पाओ, ओके। So, ma'am, in short, we should refer Narendra Awasthi for a reference. सॉरी बेटा, प्लीज कैन यू रिपीट अगेन? So, ma'am, we can refer Narendra Awasthi, right? आई डू प्रेफर। और लास्ट ईयर के भी बच्चों को देखोगे तो उन्होंने हर चैप्टर का लेवल 1 कर रखा है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो जेई मेंस के लिए वो हर एक चैप्टर के लिए प्रिपेयर्ड है। एंड हाँ, मतलब उन्होंने भी कर रखा है। अब जब उनका सिलेबस अभी फिनिश हो जाएगा सितंबर या अक्टूबर में, तब हम उनको लेवल 2 पे भी कर लेंगे, और फिर जेई मेंस के बाद में भी हमें सफिशिएंट टाइम मिलता है कि हम उनको एडवांस की तैयारी कर ले। मेंस ही कर लोगे तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही रहेंगे ना कि कैसे करना है, उसके बाद में हम मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट और कॉम्प्रीहेंशन इन पे फोकस करा देते हैं, तो मतलब उनका प्रिपरेशन ठीक ठाक हो जाता है। तो अगर अभी तुम टारगेट, क्योंकि लेवल 1 भी बहुत छोटा नहीं होता है, level 1 itself contains more than 100 questions in every chapter, इतना फिनिश करना भी बहुत बड़ी बात। मैं दूसरी बुक्स क्यों नहीं प्रिस्क्राइब करती हूँ, उसका रीजन बताती हूँ। जैसे कि अगर कुछ लोग तुम्हें बोलेंगे पी बहादुर ले लो या ओपी टंडन ले लो, ठीक है, बुक्स बुरी नहीं है, बहुत अच्छी बुक्स हैं, बट उनमें प्रॉब्लम क्या है कि उनका यहीं पर ही अगर मैं देखूं तो उनके क्वेश्चंस होंगे 350 क्वेश्चन। अब उन्हें क्योंकि उनकी बुक को थिकनेस बढ़ानी थी, क्योंकि तुम लोग भी ऐसे खुश हो जाते हैं ना, अरे ये मोटी बुक है इसका मतलब इसमें ज्यादा पढ़ने को होगा, तो ये सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, मार्केटिंग गिमिक्स है, जिनमें तुम्हें नहीं गिरना है। यू डोंट हैव टू फॉल इन टू दैट ट्रैप, ओके। यू हैव टू बिहेव वेरी वेरी मतलब एज अ वेरी कॉशियस कस्टमर। सो वहां पर तुम्हें बुक्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पेजेस पे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि हम उन 100 क्वेश्चंस को ही अच्छे से कर लें। नरेंद्र अवस्थी के साथ में, मतलब मैं ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे कुछ पे कर रखा है प्रमोट करने के लिए, ये तुम्हारे फायदे की बात है। इनकी बुक में देखोगे तो ये जो 100 के 100 क्वेश्चंस है ना, वो हर एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जैसा क्वेश्चन नंबर 2 नहीं मिल रहा होगा। जिन बच्चों ने सॉल्व किया होगा उनको रियलाइज हुई होगी ये बात। किसी ने सॉल्व करने की कोशिश करी थी? Yes, ma'am. तो तुमने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 जैसा क्वेश्चन नंबर 2 नहीं होता है। जैसे तुम्हारी 10th स्टैंडर्ड तक आदत होती है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक जैसे होते हैं, बस वैल्यूज चेंज होती है, वहाँ 10 ml होता है तो यहाँ 20 ml हो जाता है। ऐसी हैबिट होती है कि नहीं 10th स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन सॉल्व करने की? मतलब अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है x + 2y = 5, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 2x + 3y = 10। ऐसे ही होते थे ना पहले के टाइम पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक ही कॉन्सेप्ट पे मल्टीपल क्वेश्चंस होते थे। बट
वही चीज इनके साथ में, इफ यू गो थ्रू लाइक अदर बुक्स प्रेजेंट इन द मार्केट, उनके साथ में यही प्रॉब्लम है, उनके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत है, 500 दे देंगे, लेकिन उसमें यही होगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 मतलब 5 क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब एक क्वेश्चन एक टाइप का एक बार कर ले सफिशिएंट है, हमें समझ में आ गया ऐसा तरीके से होगा। अब दूसरा तरीका सीखे ना, क्योंकि आईआईटी तो हर बार नया तरीके से लेके आएगा, टेस्ट में हर बार एक नया तरीके, देखो तुमने अगर ध्यान दिया होगा तो एक भी क्वेश्चन क्लास का रिपीटेड नहीं होगा, मतलब बाई चांस एक आध चला गया हो तो आई डोंट नो, बट 99% आई एम श्योर कि हम क्लास का क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं, ना ही Yes, लास्ट ma'am. ईयर क्वेश्चन पेपर से कोई क्वेश्चन रिपीटेड होगा। ठीक है, तो हम भी कोशिश करवाते हैं कि हम तुम्हारी तैयारी उसी तरीके से करें जैसा तुम्हारे को आईआईटी में फेस करने वाले हो। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का मतलब क्या हो जाता है, एक ही हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक तो तुम प्रेशर फील करोगे, अरे यार 350 क्वेश्चन करने, तुम एक एक क्वेश्चन को करने की बैठे होगे और मतलब वो क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्मेट होंगे। बट यहाँ पर क्या है, 100 क्वेश्चन, मतलब अगर तुम एक टारगेट बना लेते हो कि मैं रोज का रोज 10 का क्वेश्चन करूंगी, और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ 10 क्वेश्चन करने का मतलब है तुम कम से कम 1 घंटा ले लोगे, कम से कम, क्योंकि पहले तुम इनको करोगे, फिर उनको चेक करोगे, फिर क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तुम्हारी अच्छी खासी ब्रेन की ग्रिलिंग लगेगी। सो if you are solving this much in near to 30 to 60 minutes 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो नरेंद्र अवस्थी के, मतलब तुम बुरे स्टूडेंट नहीं हो, ये दिमाग से निकाल देना, यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। इनिशियली इतना टाइम लगता ही लगता है, एक बार कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा तो वो जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे तुम्हें पता ही है, जब तुमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा था तो तुम्हें शायद एक एडिशन करने में 2 + 6 करने में भी बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब ये टिप्स पर है। तो उसी तरीके से पहली बार जब पढ़ रहे हो तो पहली बार कॉन्सेप्ट लगाने में ब्रेन को उन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में और अप्लाई करने में टाइम लगे। तो अगर हमें 10 क्वेश्चंस को करने में 30 से 60 मिनट्स लग रहे हैं तो पैनिक नहीं करना, ठीक है। फिर दूसरी चीज, अगर तुमसे 50 to 60% क्वेश्चंस हो रहे हैं, मतलब 10 लिए 5 तुम कर पा रहे हो, मतलब यू आर एट सैटिस्फैक्ट्री पोजीशन, मोर देन सैटिस्फैक्ट्री पोजीशन आई विल से, मतलब 50 to 60% तुम अप्लाई कर रहे हो। अब तुम्हारा ये एंड ऑफ द डे तो नहीं है, अभी तुम इसका रिविजन करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, 2 साल हैं कि नहीं तुम्हारे पास में, टेल मी। Yes, ma'am. तो अभी तुम्हारा 50 to 60% अगर स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब है बाद में जब हम रिवाइज करेंगे तो कुछ ना कुछ बढ़ करके 80 चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा ना। Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि 10th की पढ़ाई और 11th की पढ़ाई में ड्रास्टिकली डिफरेंस है, ड्रास्टिकली, नाउ यू कैन फील, ओके। एंड आई विल प्रिफर, मतलब बाकी तुम्हारी मर्जी है, तो मैं थ्योरी तो भाई कहीं से मत पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्कूल बुक के ऊपर डिपेंडेंट रहो। मैंने ये चीजें सेमिनार में भी बोली थी कि थ्योरी के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो स्कूल बुक से तुम्हें मिली हुई है सिर्फ उनके ऊपर डिपेंडेंट रहो, और जो क्लास नोट्स दिए जा रहे हैं उनके ऊपर ही डिपेंडेंट रहो। देखो हम भी नहीं चाहते कि तुम, मतलब कोई भी टीचर, कोई भी हो, पूरे इंडिया का कोई भी टीचर हो जो जेई की तैयारी करा रहा हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके बैच का रिजल्ट खराब हो। तो वो खुद ही इनको इतना सफिशिएंटली रिच बना देता है कि तुम्हें कहीं और किसी और सोर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फाइन, सो थ्योरी तो मेरे हिसाब से तो मुझे कोई जरूरत नहीं फील होती है टू बाय स्पेशली अ बुक, यू कैन जस्ट डिपेंडेंट ऑन इट, यस, बट यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। उसके लिए मैंने तुम्हें बता दिया है, पहले वही क्लास नोट्स वाले क्वेश्चंस कर लो, फिर पास्ट ईयर पेपर कर लो, कि ये देख लो कि जो भी पढ़ाया गया क्या उससे हमारे आईआईटी का लेवल के हिसाब से है या नहीं है। और अगर फिर भी टाइम बचता है तो तुम नरेंद्र अवस्थी, आई कैन प्रिस्क्राइब यू, यू कैन डू इट, ओके। देयर आर मेनी अदर बुक्स ऑल्सो, बट मैं तुमको एक साथ किताबें नहीं खरीदने को बोल सकती हूँ। तो अभी पहले तुम नरेंद्र अवस्थी पर डिपेंडेंट रहो, अगर तुमने ये बुक पूरी सॉल्व कर ली तो मैं तुमको इसके हायर लेवल का बुक बता दूंगी, बट अभी इस पे ही रहना है, ठीक है। एनीथिंग एल्स, कुछ डाउट्स आ रहे थे? Ma'am, there is one. One question in paper. हाँ बोलो 22nd question. बेटा, रीड इट आउट प्लीज। How many moles of ZnFeS2 can be made ZnFeS2 can be made from 2 moles zinc, 3 moles iron, and 5 moles sulfur? 2 moles zinc, 3 moles iron and 5 moles of sulfur. 5 moles of sulfur। तो देखो
हाँ, अब देखो आईआईटी यही करता है, बस कुछ और नहीं करता है। मैंने तुमको जो क्लास में नोट्स पढ़ाए थे उसमें ये उसके हिसाब से ही किस टॉपिक का क्वेश्चन है तुमने पढ़ा था? मोल कॉन्सेप्ट, परसेंटेज का यूज, दैट इज एम्पिरिकल Limiting फॉर्मूला, reagent. फिर स्टोइकियोमेट्री पढ़ा था, फिर कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा था। तो ये बताओ कि ये किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है? ये किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है? Stoichiometry. हाँ, स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री को भी मैंने मैथमेटिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो मैथमेटिकली टेल मी वो किस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2? कैटेगरी अब कैटेगरी 2 में हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना होता है। तो मैंने जितने क्वेश्चंस कराए थे उसमें क्या होता था कि तुम्हें दो रिएक्टेंट होते थे और हम लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढते थे, याद करो। दो रिएक्टेंट्स होते Yes, थे ma'am. फिर उनमें से ढूंढते थे ना। तो बस आई वेंट वन स्टेप अहेड। ये क्लास में कराना था बट मैंने जानबूझ करके इसको होल्ड पे डाल दिया कि मैं तुम्हें टेस्ट में दूंगी, ताकि यू नीड टू ब्रॉडन योर थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, यू नीड टू ब्रॉडन योर थिंकिंग प्रोसेस। तो उसके लिए मैंने इसलिए जानबूझ के छोड़ दिया। अब देखो किसने किसने ब्रॉडन किया अपना थिंकिंग प्रोसेस। तो बस वही तरीका है जो करने का है, बस इसको 2 बार करना पड़ेगा। सो देखो कैसे करेंगे, अब खुद ही देख लो। इज इट अ बैलेंस्ड रिएक्शन? चेक इट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now Yes, ma'am. see, for 2 moles of Fe, how many moles of iron is required? For 2 2 moles. moles of Fe, 2 how moles. many moles of iron is required? 2 moles is required. Yes, ma'am. Okay, and given is how much? 3 moles. 3 moles. So who is the excess reagent and the limiting reagent? Ma'am, excess is iron. Iron is excess. Zinc. तो अब इसको भूल जाओ क्योंकि ये तो एक्सेस में, इससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। ठीक है, अब इसको भूल जाओ। अब फिर से सेकंड स्टेप में देखो, जब ज्यादा रिएक्टेंट्स हो तो फिर से कंपेयर करो। तो किससे कंपेयर करें, एक्सेस से करें या लिमिटिंग से करें? Limiting से. लिमिटिंग से। तो 2 मोल्स के लिए अपने को कितना चाहिए होगा? 4 मोल्स ऑफ सल्फर चाहिए होगा, कि 1 के साथ 2 चाहिए होगा। कैन यू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. सो 4 मोल्स चाहिए होगा और गिवन कितना है? 5 moles. 5 moles. 5 moles. So now tell me, who is the limiting reagent among the following? Zinc. तो अब किसके ऊपर कैलकुलेशन बेस्ड होगी? Zinc के ऊपर. तो ये कितना बनेगा 2 मोल्स के साथ? Ma'am, 2 समझा moles. अभी? Ma'am, Answer was Ma'am, wrong. Ma'am, answer Yes, was ma'am. given 2 wrong. was only coming, Yes. but it is showing 3 as the answer. No, then Yes, it is incorrect. करेक्शन कर लो, पता नहीं क्यों इतने इनकरेक्ट हो गए। 2 was कुछ only. प्रॉब्लम आ रही है या तो फिर we'll cross check it. Next time it should not happen. ठीक है अभी? तो बाकी लोग जो लोग डर गए थे देख करके, अभी समझ में आ गया कि 4 रिएजेंट्स भी होंगे तो भी ऐसे कंपेयर कर लोगे? yes, ma'am. Anything else? Ma'am, 20th question. Read it out. Ma'am, the molarity in an aqueous solution, हाँ. which was weight by volume 2% NaCl, 2% NaCl, weight by volume. Okay. yes, ma'am, ये तो 4% बहुत ही, हाँ, 4% CaCl2 and 6% NH4Cl. 4%, CaCl2 हाँ, and 6% NH4Cl. मोलारिटी किसकी निकालनी है? Ma'am, molarity, Question was molarity of in an incomplete. aqueous solution. Sorry, Ma'am, it is written molarity of in an aqueous solution. molarity of an aqueous It was solution. incomplete. Yes, ma'am. हाँ. What are you saying? It was chloride. Ma'am, this question was not complete. Okay, It was not should, complete. that's what I am also thinking. It is should be molarity of chloride ion actually. Okay, बट ठीक है, अगर उन्होंने नहीं दिया है तो भी तुम स्पेसिफाई कर करके कर सकते हो। जैसे इसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी? 2/58.5 into 100 and because this is an ml/1000, देखो ऐसी होगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही तुम सबका निकाल लो। और ये तुम्हें कितने क्लोराइड आयंस देगा? 1 मोल के साथ 1 देगा, तो इसके साथ कितना देगा? इतने ही मिलेंगे कि नहीं? चेक करो। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब ऐसे ही सब में करते जाओगे। सो दिस विल बी व्हाट 4/111 into 10 into 2 moles of chloride ion.
into 2 क्यों किया, समझ में आया? क्योंकि यहाँ 2 मोल्स मिलेंगे अपने को. Yes, ma'am. कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पर भी इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH4Cl लिख देना into 10 और इतना मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन. तो अब इसका टोटल मोल्स कर सकते हो? Yes, ma'am. ठीक है. तो अब व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ क्लोराइड आयंस, इन सब का जो टोटल क्लोराइड आयंस आएगा डिवाइडेड बाय, ये कितना अज्यूम किया था हम लोगों ने, 100 ml 100 ml 100 ml किया था ना अज्यूम. Yes, ma'am. So it will become total 300. तो बेसिकली देखो ये दो टॉपिक्स का, दो सब कॉन्सेप्ट्स का कॉम्बिनेशन हो गया. एक हो गया इसमें तुम्हारा कन्वर्जन, मैंने तुमको सिखाया था कन्वर्जन, एंड देन मिक्सिंग. तो दो चीजों से कंबाइन करके बना. यहाँ हमने कन्वर्जन किया और इस साइड मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट लगाया. कैन यू गेट इट नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Anything else? Ma'am, equal weight of X atomic weight 36 and Y atomic weight 24 are reacted Equal to weight form of X हाँ. atomic weight 36 Okay. and Y atomic weight 24 हाँ. are reacted to form the compound X2Y3. हाँ. मैम इसमें लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट फाइंड. अरे तो इसमें कितनी दिक्कत आ गई बेटा, इसको बैलेंस करो पहले. बैलेंस करोगे? ठीक है, ये तो बहुत इजी बात है, फिर क्यों नहीं कर पाए? फिर इक्वल वेट बोला है तो तुम कोई भी इक्वल वेट ले लो, कोई भी ले लो. फॉर एग्जांपल तुम 1 ग्राम ले लो, बट मैंने सपोजिंग लिया मैंने 24 ग्राम्स. ठीक है, 24 ग्राम्स इज द वेट एंड लेट. 24 ग्राम्स क्यों लिया तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में. तो 24 ग्राम्स अगर मैंने वेट अज्यूम किया है तो व्हाट विल बी वेट ऑफ एक्स? It will be equal to weight of y or not? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, and it will be equal to 24x. Can I write like this? Yes, ma'am. Can I write like this? तो moles of x बोलो कितने हो जाएंगे? 1 मोल, इसीलिए 24, सॉरी, moles of x कितने हो जाएंगे? 36 upon 24, and moles of y कितना हो जाएगा? 1 मोल. Is it correct? Yes, ma'am. तो ये कितना बचेगा? 1.5 मोल. अब खुद से देखो कैसे निकालते थे. Moles of x upon 2 will be equal to moles of y upon 3. ऐसे लिखोगे? Yes, ma'am. So tell me how many moles of x is required? Required. कितना required होगा? It will be written as 2/3 or into moles of y, that is 1. कितना requirement है? 2/3. 2/3 मोल. और given कितना है? गिवन कितना है इक्वल वेट्स के हिसाब से? हाउ मच इज गिवन? 1.5. सो टेल मी योरसेल्फ. Yes, ma'am. It's limiting. So can you see yourself? Given quantity is greater than that of the required quantity. Yes, ma'am. So इसका मतलब है x क्या है? Excess reagent. Which type of reagent? Excess reagent. Yes. X is going to behave as the excess reagent. Is it fine? Yes, So ma'am. why? Who is the limiting reagent? Why? अब समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, बस वही देखो, तरीका वही है, बस लैंग्वेज का हेर फेर है. और लैंग्वेज का हेर फेर कब समझोगे? जब तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे. तुम्हें खुद समझ में आ रहा होगा भाई कितना थ्योरी में बता दे. मैम मैंने इक्वेशन ही बनाई थी एटॉमिक वेट में, कुछ करने लगा. हाँ, तो बस यही है ना, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड करने की जरूरत है. तुम लोगों को एक पुश देने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत है, एंड देन यू कैन इजीली डू इट. कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. Okay, anything else? No, ma'am. Anything else? Yes, ma'am. Ma'am, हाँ. ma'am, question 28. 2m of 100 ml Na2SO4. 1 minute. बोलो. 2m of 100 M ml. कैपिटल है या स्मॉल है? Ma'am, capital M molarity Okay, capital M, then of 100 ml Na2SO4 100 ml Na2SO4 is mixed with 3 capital M of 100 ml. 100 ml Na2SO4. Yes, it is mixed with Mixed with 3 capital M of 100 ml NaCl. या फिर
lm of 100 ml NaCl. Okay, fine. NaCl solution and 1 m Huh? NaCl solution and Okay. 1 m And 1 m. of 200 ml CaCl2 solution. Okay, 200 ml CaCl2. Okay. Then find the ratio of एक मिनट concentration. बेटा, एक मिनट everyone wait. Sorry. Okay, so is it 30 millimoles from NaCl? Check it out. Yes. Okay, और concentration बोला जा रहा है तो total volume कितना हो जाएगा? Check it out. It is 400 ml. Is it fine? Check it out. Yes. Is it fine? Yes, ma'am. And similarly do it for calcium ion. तो calcium ion का करोगे तो 20 millimoles इसका हो जाएगा and divided by 400 millimoles. अब दोनों concentrations को add कर सकते हो. That will be the concentration of cations. Yes, ma'am. ठीक है. अब similarly दो तरीके के anions हैं तो दो chloride के लिए कर लो. तो क्या हो जाएगा 20 millimoles into 2 from calcium chloride and 30 millimoles from here divided by 400 and sulfate ion का करेंगे तो कितना हो जाएगा it will be 20 upon 400. तो फिर से दोनों को ऐड कर करके सॉल्व कर सकते हैं, फिर उनका रेशियो निकाल सकते हैं. Yes, ma'am. अब कर पाओगे? Can I leave the calculation part to you? Yes, ma'am. Thank you. ठीक है. तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने कहीं किया था if I'm not wrong. Maybe someone Yes, ma'am. asked. ठीक है, थोड़ा सा किया था बस. इसको थोड़ा बहुत तो ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे ही ना. डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे क्लास में दिया है वैसे देंगे तो फिर आईआईटी जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा ना. ठीक है, थोड़ा बहुत तो हेर फेर मचाएंगे ही. ठीक है, बट हाँ ये है गारंटी कि सिलेबस के बाहर नहीं मचाएंगे. ओके, चलो अभी कुछ और रह गया? No, ma'am. ओके, वेरी गुड. तो मतलब ओवरऑल सी तुम लोग डर रहे थे कि ये क्वेश्चन, ये डाउट नहीं आंसर हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. सी you are able to solve the question. You said chemistry is the easiest. तो देखो दो चीजें होती हैं, या तो क्लास में बच्चों को इतना हलवा पढ़ाओ कि बच्चे फील गुड फैक्टर में करें, लेकिन जब असलियत आए ना भाई, असलियत कब आएगी? जब तुम एग्जामिनेशन में सॉल्व करके आओगे. अगर तुम वहां नहीं खड़े हो सके तो मतलब कुछ भी कर लो 2 साल सब वेस्ट ही है ना. तो एक चीज ये होती है कि तो क्लास में हलवा पढ़ाते रहो और उसको मतलब उसको लेवल ही ना रियलाइज करो कि भाई लेवल क्या है एग्जामिनेशन का, और बच्चे को रियलाइज हो जब वो टेस्ट देने जाए. तो फिर वो क्या करेगा, उसका करियर स्पॉइल होगा और एंड में वो गालियां सुनाएगा. पहले 2 साल तो वो खुश रहोगे लेकिन बाद में पूरी लाइफ लॉन्ग उसको रोओगे. इट हैज हैपेंड विथ मी पर्सनली ऑल्सो. बट उससे बेटर क्या है, पहले ही रियलाइज कर लो भैया पेपर ऐसा होता है, इतना पढ़ना है, ताकि तुम अपने आप को ग्रिल करो खुद ही. मतलब क्लास में इतना उसको घिसा दो कि जब पेपर आए उसको लगे हाँ ये तो हमने किया है, ये तो हमने किया है, ऐसा कुछ पढ़ा है, ऐसा कुछ पढ़ा, ऐसा कुछ पढ़ा था और ऐसे कर पा रहे हैं. तो उससे क्या फीलिंग आती है, तो तुम वहां पे कॉन्फिडेंट फील करते हो. तुम्हारा टाइम और जो तुमने सिंसियर हार्ड वर्क दिया है मुझे, वो पूरा पे ऑफ होगा. सो you can yourself analyze the conditions. ठीक है. एंड रियल टेस्टिंग कैसे होती है कि तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है या नहीं है, वो बहुत ज्यादा लो तो नहीं जा रहा है या हाई तो नहीं जा रहा है. वो भाई पीवाईक्यू सॉल्व करो, तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा किस लेवल पे मुझे पढ़ना है. ठीक है. एंड sooner or later you need to buy that chapter wise past year questions का बुक. तो तुम लोग अभी से खरीद करके खुद ही अपने आप को चेक कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं. क्योंकि जहां तक मुझे रिकॉल हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, उसके अलावा 1-2 क्वेश्चंस और तुमने जो मुझसे पूछे हैं ना आज की क्लास में, शायद ये वाला क्वेश्चन भी है, वो सब पीवाईक्यूज से आए हुए हैं. ठीक है, कुछ एक आध क्वेश्चन तुमने मुझसे पूछे हैं, जैसा कि मुझे रिकॉल हो रहा है वो पीवाईक्यूज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है. ओके, उन्हीं से ही आए हैं और डायरेक्टली पुट कर दिए गए हैं. ओके, फाइन. सो अब बचे हुए टाइम में हम आगे का पढ़ लें. Yes, ma'am. फाइन. तो देखो हम लोग रदरफोर्ड्स तक कर चुके थे, बट मैंने तुम्हें बताया था कि रदरफोर्ड्स तक का जो पढ़ना है वो ठीक है, हमें रीडिंग मार लेना है.
हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि आई कांट प्रेडिक्ट योर पेपर, बट मे भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इससे पढ़ना तो है ही प्रॉपरली। जो रियल चैप्टर शुरू होता है वो तब शुरू होता है जब आता है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्ड्स थ्योरी। इससे रिलेटेड कुछ पढ़ाया था? Yes, ma'am. This was complete. कितना पढ़ाया था? लास्ट में क्या टॉपिक किया था? कैन Ma'am, एनीवन? basic terms regarding wave. अच्छा, मतलब कौन कौन से wavelength- टर्म्स पढ़ा दिए थे? Wavelength, मैम 3 बताए थे, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम। ओके, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड टाइम। ठीक है, उतना तो क्लियर है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, ये मीन पोजीशन है, x इज इक्वल टू 0, यहां तक जा रहे हो तो दिस इज योर एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड को जनरली a से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके यूनिट्स क्या होते हैं? डिस्टेंस के यूनिट्स के बराबर होता है। देन वेवलेंथ क्या होता है? इतना पूरा डिस्टेंस, एक वेव में जब तुम डिस्टेंस कवर करते हो, मतलब ऐसे बोल सकते हो 2 पीक्स का डिस्टेंस, तो दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा। ठीक है, एंड टाइम पीरियड मतलब एक वेव को कवर करने का। तो अब अगर डिस्टेंस है, टाइम है, तो वेलोसिटी भी तो होगी। वेलोसिटी ऑफ द वेव, सो टेल मी व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द वेव? Distance upon time. Distance. Distance. lambda into frequency. टेल Yes, मी ma'am. वेलोसिटी ऑफ द वेव भी तो होगा। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब इसके यूनिट्स बोलो, मतलब लैम्डा अपॉन टी विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द वेव। यहाँ पर क्या होगा? जो हम वेव पढ़ने वाले हैं वो वेव क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक रेडिएशन होता है जिसको हम बोलते हैं लाइट। ओके, एक रेडिएशन होता है जिसको हम बोलते हैं लाइट। ओके, तो जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं ना, जैसे कि यूवी रेज हो गए, एक्स रेज हो गए, एक्स रेज हो गए, हमारे लाइट रेज हो गए। ठीक है बेटा, कैन वी जस्ट हैव अ ब्रेक फॉर 2 minutes प्लीज? नॉट 2 minutes, 5 Yes. minutes. Can we join at 9:05? Can we join at 9:05? Ma'am, 7. Everyone? 7-5. Ma'am, Sorry, 7. my mistake. 19:05. I meant to say 19:05. Just Yes. 5 minutes बाद join कर सकते हैं. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. This is yes, something ma'am. very urgent. I'm sorry for this. Okay, ma'am. चलो, हमें वेव की प्रॉपर्टीज पढ़नी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। तो अभी इतना तो समझ में आया ना, वेलोसिटी भी होती है एक वेव की। मैम ये एयर तुमने क्या उसको रिप्रेजेंट देखी कर होगी ना, रोपवेज में वो ऐसे घुमाते जाते हैं, एक बीड लगी होती है कोने पे, वो ऐसे मूव करती जाती है बिकॉज वेव मूव कर रहा है। ठीक है, वेव की वेलोसिटी होती है। कैन यू गेट दिस फैक्ट? Yes, मैम ma'am. ए क्या, मैम ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पलीट्यूड, ए का सिंबल जनरली जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज फॉर एम्पलीट्यूड, दैट इज द मैक्सिमम पोजीशन ऑफ फ्रॉम द मीन पोजीशन, जो तुम बोल रहे थे कि शायद मैंने करा दिया है। यस मैम। फाइन, ठीक है। तो ये मतलब इसका वेलोसिटी होगा। तो हम लोग जो वेलोसिटी यूज करेंगे ना, फिजिक्स में तुम अलग अलग तरीके की नंबर्स यूज करोगे, बट क्योंकि हम लोग जो ये यूज करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए यूज करने वाले हैं, तो जितने भी हमारे लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर ही आते हैं। तो इन सब की जो वेलोसिटी होती है वो भी सेम होती है, ये वेव्स की तरह मूव करते हैं। यही सब फिजिक्स में डेवलपमेंट हुए थे, और इन्हीं सब डेवलपमेंट्स को बोर्ड ने बहुत अच्छे से स्टडी किया, जो रदरफोर्ड ने इग्नोर किया। ठीक है, वर्सेटाइल बंदा था, उसने सब स्टडी किया और उनको ही अप्लाई किया, एंड दैट्स व्हाई बोर्स थ्योरी केम इनटू बीइंग। तो वेलोसिटी ऑफ ऑल दीज रेडिएशंस इट इज सेम। ओके, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब इसी का पार्ट होता है। तो अब बता दो क्या वेलोसिटी होगी इनकी? 3 × 10⁸ meter per second. Yes. So it will be same as velocity of light, and क्योंकि तुम कंफ्यूज ना हो अपनी स्कूल बुक से और किसी और से, तो वहां पर ना वेलोसिटी का जो सिंबल यूज किया गया है वो c यूज किया गया है, तो मैं भी c यूज कर रही हूँ, एंड दैट विल बी 10 raised to the power 3 into 10 raised to the power 8 meters per second. Can you follow this?
ठीक है, अब आता है एक और चीज जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यू गोइंग टू स्कूल, या फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर क्लासेस, इट इज ट्वाइस, 2 times in a week। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बेसिकली इसको बोला जाए तो इट इज नंबर ऑफ वेव्स मेड पर यूनिट टाइम। जरूरी नहीं है पर सेकंड हो, पर यूनिट टाइम, इट कैन बी पर आवर, पर ईयर, मतलब जनरल डेफिनेशन यही है, पर यूनिट टाइम। ओके, तो फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने बोला, एक वेव जो है वो 0.5 सेकंड में बनती है, वन वेव 0.5 सेकंड में बनती है। तो कितनी वेव्स बनेंगी इन 1 सेकंड पर सेकंड? How many waves will be made per second? 2. 2 waves. How did you, and this is what 2 waves per second is called as frequency. 2 waves per second, per hour, per minute. That is called as frequency. And how do we represent frequency? It is represented by a symbol nu. This is called as nu. You know Greek symbols? Alpha, beta, gamma. जैसे हमारी ABCD होती है, उनकी alpha, beta, gamma होती है। Yes. उसमें भी एक nu होता है। ठीक है, तो अब कैसे निकाला तुमने 2 waves? कैसे निकाला? 1 Unitary upon method. टाइम पीरियड किया, Unit. 1 upon टाइम पीरियड किया। Yes. फ्रीक्वेंसी और वेव का इसका टाइम पीरियड का रिलेशनशिप समझ में आया। और यूनिट्स क्या होने वाले हैं? सेकंड इनवर्स, आर इनवर्स। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थ रोटेटिंग राउंड द सन? 1 होल ईयर, ईयर इनवर्स, कुछ भी हो सकती है इस टाइप की फ्रीक्वेंसी। इज इट फाइन? Yes. Yes. मतलब टाइम का इनवर्स। ठीक है, एंड सिमिलरली एक और ये चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वेव नंबर। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं वेव नंबर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेव नंबर? वेव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है v विद अ डैश। तो इसलिए तुम वेलोसिटी से कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि v विद अ डैश भी यूज कर रहे हैं, न्यू भी यूज कर रहे हैं, जो कि v की तरह दिखता है। इसीलिए मैंने लाइट का जो नोटेशन है, मैंने नहीं, मतलब स्कूल जो जिन्होंने भी हमारी एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स लिखी, वो हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे, उन्होंने उस चीज को, बच्चों का कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए वेलोसिटी को v से नहीं रिप्रेजेंट किया, ताकि वो कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए। अब समझ में आया क्यों c यूज किया? Yes, ma'am. Because they are coming like similar symbols. So what is wave number? Again, number of waves made in per unit distance. Made in per unit distance. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वेव को कवर करता है 0.25 मीटर्स। ओके, तो 1 मीटर कितने वेव्स बनाएंगे? 4. 4 waves Oh. per meter। तो ये जो 4 नंबर आया है ना, यही है हमारा वेव नंबर। सो व्हाट इज वेव नंबर? हाउ विल यू डिफाइन इट? इट विल बी 1 अपॉन लैम्डा, बिकॉज एक वेव कवर करता है, ये वेवलेंथ नहीं है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव इज Yes. कॉल्ड एज वेवलेंथ। Isn't it wavelength? Yes, ma'am. So what are the units of wave number now? Tell me yourself. सेंटीमीटर Meter inverse, इनवर्स, मीटर इनवर्स। हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ना हम लोग एक पार्टिकल, एक छोटे से पार्टिकल का वेवलेंथ मेजर करने वाले हैं, जो कि किसी में आएगी, हम लोग पिकोमीटर्स, एंगस्ट्रॉम्स, ऐसे यूनिट्स मेजर करने वाले हैं। क्या मैंने तुम्हें कन्वर्जन भी बताए थे? पिकोमीटर, सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में कन्वर्जन बताए थे? No, ma'am. Yes, ma'am. नहीं बताए थे। तो जनरली बता देखो, दीजिए। डिस्टेंस को हम लोग, क्योंकि हम बहुत छोटे फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं, सो जो डिस्टेंस है ना, वहाँ मीटर वीटर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो हम लोग यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे 1 पिकोमीटर। 1 picometer is represented with a symbol pm and it is 10 raised to the power minus 12 meter. फिर we can also use 1 nanometer. Nanometer is represented by nm and that is how much? nano किसके लिए stand होता है? 10 raised to the power minus 9 के लिए। फिर उसके बाद में we can also use another unit which is called as angstrom। सुना है? Yes. Yes, जैसे ma'am. बड़े डिस्टेंस को तुम लाइट ईयर में मेजर करते हो, छोटे डिस्टेंसेस को हम लोग ऐसे मेजर करते हैं, 10 raised to the power minus 10 meter. Then there are microns, मतलब यही प्रेफरेबली यूज की जाती हैं। माइक्रोन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, that is Minus. यस। तो छोटे छोटे यूनिट्स ऐसे हो जाएंगे। तो वेव नंबर का यूनिट क्या हो जाएगा?
1 अपॉन पिकोमीटर इनवर्स, ऐसे कर करके हो जाएगा, ठीक है। नाउ कैन यू गिव मी अ रिलेशनशिप, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हमें याद रखना है। रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, B equals F lambda. फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव कैसे करेंगे? यू नो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, अभी अभी हमने किया ना, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, Yes, ma'am. and what is velocity of the wave? Lambda upon time period. Check karo, is it fine? Yes, ma'am. Is it fine? तो can I replace t? T को कैसे replace कर सकते हैं? Can I write it as lambda upon c? देखो nu is equal to c Yes, upon ma'am. lambda, याद रहेगा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब जब वेव की थ्योरी पढ़ ली गई, फिर आया वेव के बारे में सब कुछ पढ़ लिया गया, तो एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था प्लैंक। इसके वजह से मेजर डेवलपमेंट्स पढ़े, सो फिर आई प्लैंक्स थ्योरी। अब देखो बेसिक तुम्हारा क्लास 11th स्टार्ट होता है, यहीं से मेन क्वेश्चंस वेटेज वाइज स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ से ध्यान दो बहुत अच्छी तरीके से। प्लैंक्स थ्योरी, ही टोल्ड अस कि हम लोग लाइट को कैसे ट्रैवल कराते हैं, मतलब तुम्हें बोला जाता है ना कि लाइट ट्रैवल कर रही है, कैसे हम बताते हैं लाइट ट्रैवल हो रही है? यू मेक अ रे, यू मेक अ रे ऑफ लाइट, बनाते थे ना फिजिक्स में, 10th Yes, में तो ma'am. पढ़ते हैं ना Yes, शायद लाइट। Yes, ma'am. तो Yes, तुमने ma'am. ऐसे पढ़ा था ना रे ऑफ लाइट के वे में। अब जब तुम रे बनाते हो, क्या इसमें कोई ब्रेक्स आ रहे हैं? No, ma'am. No, ma'am. तुमने क्या पढ़ा था कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड तुमने कोई ब्रेक्स नहीं बनाए, मतलब वो कंटिन्यूअस है। कैन यू सी इट इज कंटिन्यूअस? Yes, ma'am. और तुम बोलते हो लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब प्लैंक ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को रॉन्ग प्रूफ कर दिया, ही प्रूव्ड इट, इट इज रॉन्ग। ओके, ही सेड ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मतलब जिसमें कौन कौन आते हैं, मैंने तुम्हें बताया कि उसमें आते हैं तुम्हारे जितने भी यूवी रेज हैं, माइक्रोवेव रेज हैं, एक्स रेज हैं, ये सब उसमें ही आते हैं, लाइट भी उसी में ही आता है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, okay, including visible light, travel in the form of small energy packets, okay, which are called as क्वांटा। क्वांटा मतलब सिंगुलर में, ठीक है। अगर एक सिंगल एनर्जी पैकेट की बात करोगे तो उसे हम बोलेंगे क्वांटा, और अगर मल्टीपल एनर्जी पैकेट्स की बात करोगे तो हम बोलेंगे क्वांटम। क्वांटम इज यूज्ड फॉर प्लूरल, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज फोटॉन, ठीक है। तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम दिया गया, क्वांटा से ही डिराइव किया गया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, तो ये क्वांटा और ये है, और इट इज फॉर्मिंग इन द स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। ओके, तो अब बताओ, जैसे तुमने कन्वेयर, मतलब एयरपोर्ट पे देखा होगा ना, कन्वेयर बेल्ट पे हमारा लगेज आता है, तो क्या लगेज कंटिन्यूअस होता है या बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं? ब्रेक्स होते हैं या नहीं होते हैं? Yes, ma'am. Yes, तो अगर ये बोल रहा है कि वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में मूव करेंगे, तो एक पैकेट और दूसरे पैकेट के बीच में भाई कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। Yes, ma'am. एंड अगर डिस्टेंस होगा तो लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म और डिसकंटिन्यूअस फॉर्म? Discontinuous. तो जो तुमने कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन बनाई थी वो गलत थी या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, तो उसने उन पूरी थ्योरीज को गलत प्रूव करा, दैट इज लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ डिसकंटिन्यूअस फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड एज फोटॉन्स, ठीक है। और फिर तुमने बोला वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, वेयर एज जब इसने पढ़ा, इसने जब इसको स्टडी किया, तो ही टोल्ड अस दैट ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल मेकिंग अ वेव
They do not travel in the form of a straight line, making a wave. ठीक है, अब वेव की तरह मूव करेंगे तो क्या होगा, वेव वेव का वेवलेंथ होगा, टाइम पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, सब कुछ होगा कि नहीं? अगर वेव की तरह मूव करेंगे तो सब कुछ होगा। फिर क्या होगा, थर्ड पॉइंट उसने बोला, वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला h nu। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, hc upon lambda। कैन बी राइट लाइक दिस, कैन बी राइट लाइक दिस? Yes, ma'am. तो हमारा फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थ्योरी से क्वेश्चंस आएंगे, वो तो तुम देखो 3 पॉइंट से याद कर लेना कि एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कैसे चलते हैं, डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस? Discontinuous. बाय डिसकंटिन्यूअस, बिकॉज स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रेट लाइन में चलते हैं या वेव चलते हैं? Wave. वेव। ठीक है, और ये फॉर्मूला से न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो इसलिए याद रखना है h nu और hc अपॉन लैम्डा। विल यू रिमेंबर दिस? Excuse me, ma'am. यस, And what is H? h अभी बता ही रहे हैं, h इज कॉल्ड एज, बिकॉज ये प्लैंक ने थ्योरी दी थी, तो इसका जो h है उसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट? कोई पहले मुझे यूनिट्स बताओ। यूनिट। नहीं बेटा, एनर्जी के यूनिट जूल होते हैं और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, सेकंड। व्हाट विल बी द यूनिट्स? जूल पर सेकंड। नहीं बेटा, पर सेकंड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक से करो। जूल इज इक्वल टू h सेकंड इनवर्स, h इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकंड इनवर्स, लिखोगे? टेल मी, एम आई डूइंग समथिंग इनकरेक्ट? No, और ma'am. ये ऊपर जाएगा तो विल इट बिकम जूल सेकंड और नॉट? Yes, ma'am. तो ये कौन से सिस्टम का यूनिट है, SI सिस्टम का या MKS सिस्टम का? MKS सिस्टम। CGS में लिखना है तो यूनिट ऑफ एनर्जी इन CGS इज कॉल्ड एज व्हाट, अर्ग। यू नो दिस? नहीं पता है तो पढ़ लेना। Yes, ठीक है, अर्ग्स को कन्वर्ट करके देखना, तो यू विल फाइंड 10 raised to the power 7 7 is equal to 1 joule. Can you follow this? Ma'am, can you please, for convenience, can you write the full form of the variables that you have used in this formula? Which formula, which Ma'am, hc by lambda. तो SC अभी अभी बताया, velocity है, we did ना, and lambda is the wavelength, velocity of light upon wavelength. Is it fine now? Ma'am, c is speed of light. What? Yes. अभी अभी किया था ना, बस जस्ट उसी से तो कंटिन्यूएट कर रहे हैं हम लोग। कहीं किया था, ये देखो। Is it fine now? बोलो जल्दी से। Yes, ma'am. ठीक है, तो एक फॉर्मूला बस हमको ये याद रखना है, hc अपॉन लैम्डा। कैन यू, इज इट फाइन नाउ? इज इट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, अब वैल्यू ऑफ h क्या होती है, इट इज 6.6 into 10 raised to the power -34 joules second। ठीक है, अब इसको अर्ग में लिखना होगा तो कितनी हो जाएगी, 6.6 तो कॉमन ही रहेगा, लेकिन इट विल बिकम व्हाट, 10 raised to the power माइनस, ये होगी कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो बस हमारे को यही फॉर्मूला यूज करना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर FPS सिस्टम में मैम क्या होगा मैम यूनिट? बेटा MKS और SI सेम ही तो होता है। नो मैम, FPS सिस्टम। बेटा FPS देखो, हम लोग यही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो FPS जब तुम इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ते हो ना, तो वहां पर आता है। हमारे जो IIT है ना, वो इसी में फॉलो कर रहा है। तो अब FPS तुम खुद से डिकोड कर लेना क्या होने वाला है, क्योंकि हम सिलेबस पे अभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है, हम सिर्फ SI और CGS में ही डील करेंगे। इज इट फाइन? अब तुम खुद से कैलकुलेट तो कर सकते हो ना? यस मैम। ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस तो MKS या SI पे ही रहते हैं ज्यादातर। अच्छा, अब देखो, isn't it denoting the dual nature of light? Isn't it denoting the dual nature of light? Yes, ma'am.
डुअल नेचर कैसे? सी इट इज Wave nature, पार्टिकुलेट, particle इट nature. इज पार्टिकुलेट इन नेचर। पार्टिकुलेट कैसे? तभी तो वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में मूव कर रहा है। एक एक एनर्जी पैकेट एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं? Isn't it Yes. represented? And Yes. दूसरा, it is moving, making a wave. Isn't it telling you about the wave nature also? Yes. ठीक है, तो हम जैसे तुमने देखा होगा, अगर बहुत सारी बुक्स रखी हो, स्टैक की हो, तो क्या होता है, अगर एक बुक को झटका मारो तो सारी बुक्स गिर जाती है लाइन से। साइकिल पे, साइकिल स्टैंड पे एक साइकिल को धक्का मारो तो सारा गिर जाता है या नहीं गिरता है? Yes, ma'am. बट यहाँ Yes. पर क्या है, जैसे सपोजिंग ये हमारा ट्यूबलाइट का सोर्स है, हमारा बल्ब का सोर्स है, जहां से लाइट आ रही है, विजिबल लाइट आ रही है, तो क्या होता है कि ये हमें ये कैसे मूव करेगी? पहले एक आएगा, फिर वो क्या करेगा, सॉरी, पहले एक आएगा, एक फोटोन आएगा, वो दूसरे को धक्का मारेगा तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, फिर दूसरा फोटोन प्रोड्यूस होगा, वो दूसरे को धक्का मारेगा, तो ऐसे धक्का मारते 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 दे विल जस्ट कीप ऑन पुशिंग ईच अदर। सो सी दे विल नॉट मूव इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जब साइकिल्स गिरती हैं, बुक्स गिरती हैं, दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनने वाली है, यहाँ पे क्या बनने वाला है? वेव। ऐसे मूव करती है लाइट। कैन यू गेट इट? बट फिर तुम बोलोगे हमें क्यों स्ट्रेट लाइन दिखती है? क्यों दिखती है, उसका रीजन समझो। तुम्हारे जो पोल्स में वायर टंगे, मतलब लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स पे जो वायर्स होते हैं, जब हवा चलती है तो ये वाइब्रेट हो रहे होंगे कि नहीं? बोलो, कैसे रहते होंगे? Vibrate करते हो. होते होंगे, Yes. ऑब्वियस सी बात है, हवा चलेगी तो होंगे ही। बट हमें तो वो स्ट्रेट दिखते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि हमारी आईज उतनी सेंसिटिव नहीं है कि उतने डिस्टेंस से उनका जो एम्पलीट्यूड है ना, वो बहुत छोटा है, तो हमारी आईज की सेंसिटिविटी को वो धोखा दे रहा है, हमें दिखते हैं कि वो स्टेशनरी है। सिमिलरली जब ये पार्टिकल्स मूव करते हैं तो इनका भी एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होता है, तो हमें वो स्टेशनरी दिखते हैं, बट एक्चुअल में वो वेव नेचर में मूव कर रहे हैं। ओके, डिड यू गेट इट? Yes. Yes, और ma'am. हमें Yes. क्यों प्रॉब्लम आई वो भी समझ में आया? हमें क्यों वो स्ट्रेट नहीं दिखे वो भी समझ में आया? Yes, yes, ma'am. ठीक है, हम क्यों रे बनाते हैं वो भी समझ में आया, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द फोटॉन्स, ये भी ज्यादा हमें नहीं दिखता है, और प्लस जो एम्पलीट्यूड है वो भी इतना छोटा है कि हमें रियलाइज नहीं होता कि एक्चुअली दे आर मूविंग इन डिफरेंट वेज। डिड यू गेट इट? I mean, light particulate form में चलती हाँ, है। I means light particulate form में चलती है। yes, it is particulate in nature, that's why you are having photons ना, full of energy। Yes, ma'am. ठीक है, तो it is denoting the particulate nature। Yes, ma'am. अभी ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, पूरा चीजें क्लियर हुआ? Yes, Okay. ma'am. तो देखो, अब इसमें बस तुमको दो फॉर्मूलाज यूज करना है। एक फॉर्मूला ये हो सकता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या यूज करोगे? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन? H nu. एच न्यू, Constant ठीक है, interval. एच न्यू यूज करोगे या फिर एच सी अपॉन लैम्डा यूज करोगे। नाउ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, क्योंकि बार बार एच और सी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सपोजिंग क्वेश्चन में लैम्डा गिवन हो तो बार बार एच और सी को मल्टीप्लाई करोगे या नहीं? Yes. ठीक है, और उसमें टाइम वेस्ट करोगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं क्लास में बता देती हूँ, एच और सी दोनों ही कांस्टेंट है, मतलब इनका जो वैल्यू आएगा वो भी तो कांस्टेंट रहेगा। Yes, ma'am. Yes. That is 6.63 into 10 raised to the power 34 into 3 into 10 raised to the power 8। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 19.98 into 10 raised to the power -26। देख लो मैंने गलत तो नहीं कर दिया है? चेक इट आउट, इज इट करेक्ट? ठीक है, जिसको तुम 19.89. अप्रोक्सीमेटली क्या ट्रीट कर सकते हो, 20 into 10 raised to the power -26, उससे तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा। Yes, anyone wanted to say something? You wanted to add something, कोई कुछ बोल रहा था? Do you agree with this? Do you agree with this? Yes, ma'am.
ओके अब क्या होता है, एनर्जी की एक और यूनिट का यूज करी जाती है तुम्हें परेशान करने की, जहां जहां तुम मतलब फंसोगे, वो जो फंसने वाले पॉइंट्स है मैं ऑलरेडी तुम्हारे नोट्स में इंक्लूड करा देती हूँ, ताकि मतलब तुम्हारा जब तुम क्वेश्चन करोगे तुम्हें दिखेगा अरे ये तो नोट्स में लिखा हुआ है, तो यू विल नॉट फील डिप्रेस्ड। ओके सो इसलिए हम लोग पहले से ही उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो और तुम्हें रिवीजन में भी याद रहेगा, तो मैं मतलब कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको इस वे में यूज कर लेती हूँ। फिर एक और यूनिट होती है एनर्जी की जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके सो वन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईवी से। So 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19. That is nothing but the charge of electron. See, this is nothing different. It is charge of electron only. Joules. Is it fine? Yes, ma'am. एक और यूनिट होती है जो मतलब बुक्स में दी होगी तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें डरना नहीं है, मैं इसकी सब चीजें तुम्हें ऑलरेडी पहले से ही करा दे रही हूँ। ठीक है सो ये हमारी एक और यूनिट यहाँ पर गिवन होती है। तो अगर तुम्हें फिर से वेवलेंथ दिया हो और तुमसे बोला जाए क्या करो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या निकालोगे, इट विल बी इक्वल टू 20 into 10 raised to the power minus 26 upon lambda। लेकिन लैम्डा को किस में रखना है, कौन से यूनिट्स में रखोगे, ऐसा ही सिस्टम फॉलो कर रहे हो, मतलब लैम्डा किस में होना चाहिए, मीटर। अगर नहीं है तो कन्वर्ट करोगे ना। यस मैम। ठीक है और अगर तुम्हारा क्वेश्चन में तुम्हें बोला जाता है कि मुझे लैम्डा ना माइक्रोन्स में निकाल के देख लो, माइक्रोमीटर में दे दो, और एनर्जी तुम्हें इसमें चाहिए लाइक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो वो भी मैंने कैलकुलेशन करके पहले ही तुम्हें दे दिया, इट इज 1.24 अपॉन लैम्डा इन माइक्रोन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर एनर्जी निकालोगे तो किस टर्म्स में आएगी, जूल्स में आएगी, और यहाँ पे निकालोगे तो किस में आएगी, 1.24 यूज करोगे तो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन। कैन यू गेट इट, डायरेक्ट फॉर्मूलाज, कैन यू गेट इट? यस मैम, यस मैम। ठीक है तो ये तुम डायरेक्ट तुम्हारे लिए शॉर्टकट हो जाएगा, बड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। ओके दूसरी चीज क्या है, अगर सपोजिंग तुम्हें कभी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एनर्जी दी हो, बहुत ज्यादा एनर्जी दी हो विच इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, दैट मीन्स वहां मल्टीपल फोटॉन्स एमिट हो रहे होंगे। अगर तुम्हारी जो एनर्जी है एक फोटोन की एनर्जी से ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है एक से ज्यादा फोटोन एनर्जी दे रहे होंगे। यस मैम। ठीक है तो उस केस में क्या करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ठीक है सो अब देखो फोटोन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो अगर बाई चांस तुम्हारा यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आंसर फ्रैक्शन में आता है तो तुम्हें उसे नियरेस्ट होल नंबर पे कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों कन्वर्ट करोगे होल नंबर में, बोलो? Number of photons cannot be fractional. Yes, they cannot be further Fundamental divided. particle. Yes, so इसलिए कभी भी फ्रैक्शनल नहीं आना चाहिए। ठीक है इफ इट इज फ्रैक्शनल कन्वर्ट इट टू नियरेस्ट होल नंबर। क्यों कर रहे हैं आप समझ में आएगा ये नोट्स, होल नंबर। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें एनर्जी नहीं देकर के पावर दिया होगा, ये सब ऐसे ही इसी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। पावर, नाउ व्हाट इज पावर, एनर्जी रिलीज पर सेकेंड होती है कि नहीं, एनर्जी रिलीज पर सेकेंड। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे दिया है 100 वॉट, पावर की यूनिट्स वॉट होती है कि नहीं, दैट मींस इट इज रिलीजिंग 100 जूल्स ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। डू यू एग्री, इज इट फाइन? तो बस दो फॉर्मूलाज यूज करने हैं, कौन कौन से बोलो? E is equal to hc upon lambda and total energy is equal to number of photons into energy of 1 photon। बस यही दो फॉर्मूलाज यूज करने हैं, याद रखोगे दो? Can you remember them? Yes ma'am। Okay, now do a question, find the ratio of frequencies
ऑफ वायलेट लाइट, मतलब वायलेट कलर की लाइट है जिसका लैम्डा का वैल्यू है 4 × 10⁻⁻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 ⁻
यहाँ हम डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस तो बढ़ा नहीं सकते, तो वो सब गड़बड़ कहाँ करवा देते हैं, यूनिट्स में। तो यहाँ के क्वेश्चंस में मतलब यूनिट्स को बहुत बहुत केयरफुली डील करना, क्योंकि यहीं पर ही गड़बड़ होगी और कोई गड़बड़ नहीं होती है। कैलकुलेशन प्लस माइनस वाली होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली होती है, वो तो हर बच्चा ही कर लेगा। बस सिली मिस्टेक्स कहाँ होंगी, यहाँ पर होगी। सो डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एनर्जी, डिटरमाइन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एनर्जीज। ट्राई करो जरा, what will be the ratio of their energies? How will you do it? What will be the energy of violet light? का फोटोन लेते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होगी? How will you write? What is the formula of energy? hc upon lambda. Yes, lambda 1, violet light का lambda. Similarly, what will be the energy of red light? hc upon lambda 2. तो बस अब बता दो कैसे निकालोगे रेशियो। अब समझ में आया कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे? देख पा रहे हो कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन Yes, आएंगे? ma'am. Yes, That ma'am. will be what? It will be lambda 2 upon lambda 1. Can you solve them now? Yes, ma'am. बस देख लिया कितना डिफिकल्ट आएगा, और यूनिट सेम है तो इसलिए कोई कन्वर्जन नहीं लगाया मैंने। Can you get it? सब लोग थक गए Yes, क्या? ma'am. Yes, ma'am. थक मैम गए? लैम्डा, मैम लैम्डा तो मैम मीटर होना चाहिए मैम, यहाँ सेंटीमीटर क्या भी है। चीज? मैम लैम्डा मैम एसआई भी होना चाहिए, मतलब मीटर होना चाहिए, यहाँ पे अरे तो सेंटीमीटर। तुम कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर भी 10 रेज़ टू द पावर -2 लगाओगे, यहाँ पे भी 10 रेज़ टू द पावर 2, इनको लेके आओगे तो वो कैंसिल नहीं हो जाएंगे। Yes. ठीक है, तो तुम मतलब कर लेना, मुझे पता है कि कहाँ नहीं करना है कहाँ करना है, तो इसलिए आई एम कंफर्टेबल विद दैट बिकॉज आई नो माई सिली मिस्टेक्स, बट इफ यू पीपल आर नॉट, ट्राई टू कन्वर्ट देम। इज इट फाइन? यस मैम। ठीक है, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सपोजिंग इट इज गिवन 100 watt power source emits green light जिसका वेवलेंथ होता है 5000 एंगस्ट्रॉम। ओके, नाउ टेल मी हाउ मेनी photons are emitted per millisecond. Photons are emitted per second. बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला 1 या फॉर्मूला 2? Formula 2. फॉर्मूला 2। व्हाट इज फॉर्मूला 2? P is equals to energy by time. सॉरी, Ma'am, power is equals to energy by second. एनर्जी बाय टाइम। P is equal to Energy by time. एनर्जी बाय टाइम। ओके, एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। P कितना दिया हुआ है? 100 वॉट्स दिया है, चेक इट आउट। और टाइम कितना है? पर सेकेंड। सो हाउ मच एनर्जी इज एमिटेड पर सेकेंड, टेल मी। 100 watt. 100 watt. जूल्स बेटा, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? Ma'am, हाउ मच एनर्जी इज एमिटेड पर सेकेंड? 100 joules. यस, तो टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड इज 100 जूल्स पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? What are they asking you? Number of photons per second. So what is the formula for that? Isn't it total energy per second will be equal to number of photons per second? Isn't it? Into energy per photon. यही होगा फॉर्मूला? Yes, ma'am. Do you agree? और फिर बताओ, ये तो हो गया 100, नंबर ऑफ फोटॉन्स अपने को निकालना है। आई एम राइटिंग इट एज कैपिटल N। इसको क्या लिखें? 20 into 10 to the power. वेरी गुड। HC को मैंने तुम्हें वैसे ही सिखा दिया, क्या लिखते हैं हम लोग? अगर जूल्स में निकालनी हो HC की वैल्यू तो हम लोग किस में लिख देते हैं? We take it as 20 approximately into 10 to the power 26. Very Minus good. And lambda कितना है? लैम्डा कितना है? 500 into 10 to the power
minus ये एंगस्ट्रॉम है, ये जूल्स है, मतलब हम MKS सिस्टम फॉलो करेंगे। दैट मींस एंगस्ट्रॉम को उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 to the power minus 2. यस, सो ये हो गया 5000 into 10 raised to the power minus 10. Can you solve this? Can you solve this? Yes, ma'am. ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा है कितने डिफिकल्ट किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? Only two formulas are to be used, hc upon lambda, or total energy is equal to number of photons into energy of one photon. Can you follow this much? Yes, ma'am. Is it fine for now? Is it fine for now? Yes, ma'am. ma'am. What did you say? मेरे को सुनाई समझ नहीं आया। दो लोगों के